Dear students, we shall be discussing types of chemical reaction today. So our topic is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. And we shall be discussing types of chemical reaction today. Types of chemical reaction. Types of chemical reactions. Chemical reactions. So, from the knowledge of class 9, we know that during chemical reactions, atoms of one element are not converted into are not changed into the atoms of other elements, nor the atoms disappear during chemical reaction from the reaction mixture or appear from elsewhere. कहीं से जो एटम है रिएक्टेंट के अंदर, वो कोई भी एटम ना तो डिसअपियर होता है, ना तो कहीं से कोई नया एटम appear होता है. What happens simply during chemical reaction, arrangement of atom takes place. Atoms का arrangement हो जाता है. और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके एटम्स के बीच में जो रिएक्टेंट में बॉन्ड्स है वो those bonds are broken, वो बॉन्ड टूट गया जाता है, and new bonds are formed to give rise the products. So what depending upon the nature of the chemical substance, depending upon the number of reactants combined, depending upon the number of products formed, depending upon the mechanism of the reaction, reactions are mainly of 5 types. The first one is combination reaction. Combination reactions. Combination reactions. For this, let us perform an activity. Activity number 1.4. In your book, it is given activity 1.4. So let us take a beaker. Let us take some calcium oxide in this beaker. Calcium oxide, CaO. This is also known as quicklime. So quicklime भी बोलते हैं. और इसमें स्लोली धीरे धीरे एड वाटर इस पे पानी डाल दो इस पे, एंड सी व्हाट हैपेंस. उसके बाद इस बीकर को जब छुओगे, इफ यू विल टच दिस बीकर, तो देखोगे कि इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाएगा. तो इससे रिएक्शन क्या हुआ? So calcium oxide, it was a solid first, and plus water, H2O liquid, and this becomes CaOH2, aqueous solution. इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन. केमिकली इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कॉमन नेम है इसका स्लैग्ड लाइन, बिकॉज जब कैल्शियम ऑक्साइड अगर पाउडर के रूप में या पीसेस के रूप में जब लिए हैं, इस पर जब धीरे धीरे पानी डालते हैं तो ये बीकर गर्म होता है और एक प्रकार का साउंड होता है हिसिंग. ऐसा लगेगा जैसे तरह की आवाज हो रही है. इसको हिसिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहते हैं. और इससे जो चूना तैयार होता है सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइन कहलाता है ड्यू टू स्लैकिंग प्रोसेस. अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग गौर करें तो देखते क्या है कि रिएक्शन तो हो रहा है. वन सब्सटेंस इज क्विकलाइन, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है. तो ऑल टुगेदर यहाँ दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, 2 reactants. All together there are 2 reactants in this reaction, and there is only one product. सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है, और that product is calcium hydroxide.
इस प्रकार के रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता हो फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। जो ये चांस की बात है कि यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं जहां पर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो द रिएक्शंस इन विच ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from the combination of two or more reactants, the reaction is known as combination reaction. So this is an example of a combination reaction, you can say. At the same time, heat is evolved during the reaction, and the reactions in which heat energy is evolved along with the formation of products. प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ अगर हीट भी निकले तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। So this reaction also comes into the category of exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अदर एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अगर हम लोग देखें, टू सब्सटेंसेस यहाँ हमने लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड था, वाटर इज अनदर कंपाउंड। सो दो कंपाउंड मिला और एक कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बना। अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अगर हम लोग देखें, अदर एग्जांपल्स ऑफ combination reactions, अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल सी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड plus O2 from air it comes from air, gas, it is a gas, bonds to CO2, and you know whenever coal is burnt in presence of air, it is also heated, light is also evolved. तो heat निकलता है, वो तो another, heat is a energy not a substance, energy not a substance. So again you can see only one product is formed by the combination of two substances. That's why this is yet another example of combination reaction. One more other example of combination reaction will be a combination of hydrogen and oxygen. Combination of hydrogen and oxygen to give water. H2 is a gas, O2 is a gas, and water is formed, twice H2 liquid. See, two compounds, two substances, element. Hydrogen is one element, one substance. Oxygen is another element, other substance. And these two substances combine to give only one product, and that product is water. And this is yet another example of combination reaction. So these are some of the examples of combination reaction. But as you could see, जैसा तुम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाले तो हीट एनर्जी बहुत होता, गर्म हो गया बीकर। और यहाँ भी हमने लिखा है कि कोल को जब ऑक्सीजन के एयर के ऊपर प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बहुत कम, इसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए नहीं है। हम लोग जब भी कोयला जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ खाना पकाने के लिए या कुछ अदर वर्क के लिए करते हैं, यानी हीट एनर्जी रिवॉल्व होता है। तो ऐसे सारे रिएक्शन, all those reactions in which heat energy is evolved along with the formation of products are called exothermic reaction. तो ये कॉम्बिनेशन तो हुआ ही हुआ डेफिनेशन के हिसाब से, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली इसमें मेंशन नहीं है, बट हायर क्लासेस में पढ़ोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब भी वाटर का फॉर्मेशन करता है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व। सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जितने एग्जांपल हम लोगों ने देखे वो सभी के सभी कॉम्बिनेशन तो हैं ही, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है जितना एग्जाम्पल देख रहे हैं, लोग देखे क्या, इससे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। यहाँ दो एलिमेंट मिला, सिंगल प्रोडक्ट बना, दो एलिमेंट कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो अब इन सब को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, द रिएक्शंस in which two or more substances। अब ये देखो सब्सटेंसेस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी है। तुम देखा किसी एग्जाम्पल में जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो एलिमेंट थे या फिर कंपाउंड थे। दो एग्जाम्पल देखा जिसमें एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया,
या पहला वाला एग्जाम्पल जो चूना वाला एग्जाम्पल था उसमें कंपाउंड मिलाए थे। सो द 2 or more substances combine together to give या react together, combine together या react together to give a single product are called, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एग्जांपल हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफिनेशन में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया तो वो रिएक्शन कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। सो दिस इज वन थिंग। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अब हम लोग जरा देखना चाहेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने कहा कि जितना भी हम लोग एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोगों ने साइट किया और सबके सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ में साथ एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनना था वो तो बना ही, साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुआ। जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाले स्लोली तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वो तो एक बात थी, केमिकल बना प्रोडक्ट, साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुआ जिससे कि बीकर गर्म हो गया। तो इसलिए उसको कोयले को जब जलाते हैं तो CO2 बनता ही है, लेकिन साथ में हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो द रिएक्शंस इन विच heat is evolved or released, evolved लिखो या released लिखो, evolved और released along with the formation of product। प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोडक्ट बनना है। उसके साथ साथ अगर हीट भी निकले, हीट भी रिलीज हो, along with the formation of products are called products are called exothermic reactions। ठीक है, एग्जाम्पल वही तीनों जो अभी हम लोग पढ़ चुके, तीनों एग्जाम्पल, ऑल द थ्री रिएक्शंस डिस्कस्ड सो फार, अभी तक जो भी डिस्कस किए हम लोग, ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, अदर एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अदर एग्जाम्पल्स में बर्निंग ऑफ सीएनजी गैस जलाते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ सीएनजी गैस। तो सीएनजी गैस का फॉर्मूला जैसा कि जानते हो, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन, और इसको एयर के प्रेजेंस में जब हम लोग जलाएंगे देन वी गेट CO2 एंड प्लस ट्वाइस H2। अब तुम देख सकते हो यहाँ प्लस हीट, सबको जानते हैं सीएनजी गैस जलाते हैं लोग हीट के लिए और किसी काम के लिए नहीं जलाते। कभी भी सीएनजी गैस की कहीं बर्निंग इसलिए नहीं होती कि हमको CO2 चाहिए। CO2 बहुत काफ़ी है मात्रा में एटमॉस्फेयर में, उसकी कोई कमी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है CO2 की अधिकता की वजह से, एक्सेसिव CO2 की वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं, इसलिए CO2 में नहीं चाहिए। बट हमें अगर हीट चाहिए तो सीएनजी जलाते हैं घरों में, अपने घरों में, फैक्ट्री में, या फिर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए। तो यहाँ भी देखते हो हीट निकला, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि द फूड दैट वी कंज्यूम, जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि आलू है, चावल है, गेहूं है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नाम का होता है, स्टार्च। एंड ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, जब हम खाना खाते हैं और जब डाइजेशन होता है तो स्टार्च जो है, स्टार्च वगैरह, स्टार्च फ्रॉम आवर फूड, हमारे खाना में जो स्टार्च होता है
पोस्ट डाइजेशन के बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। एंड दिस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है खाने में हम लोग ले लिया ग्लूकोज, हम लोग सांस ले लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स में जाकर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। और इसी एनर्जी की हेल्प से हम लोग कुछ काम करते हैं। इससे तुम देख सकते हो क्या कि जो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और फिर ये CO2 गैस को हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, सांस छोड़ कर निकाल देते हैं बाहर, और वाटर हमारे बॉडी में रहता है, और एनर्जी से हम काम करते हैं, और इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन करते हैं। और इससे तुम देख सकते हो ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत सा वेजिटेबल मैटर, हम लोग घरों में खाना खाते हैं तो सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, सब्जी का छिलका, इसको वेजिटेबल मैटर कहते हैं। इसको जब हम लोग फेंक देते हैं कहीं बाहर, घर के बाहर, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से हीट निकलती है, और इसलिए वो भी कह सकते हो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन बिटवीन एक बात ये आ गई कि अच्छा हाँ, ये जो हम लोगों ने देखा है दिस वन ये एक्सोथर्मिक है, बट कैन यू से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आंसर होगा नो। क्यों? देयर आर टू प्रोडक्ट्स। तो हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी को कहेंगे जिसमें ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक्सोथर्मिक के कैटेगरी में तो आ रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। अभी सिंगल सब्सटेंस हमारे पास होगा और वो टूट कर इट विल ब्रेक डाउन, इट विल डिकम्पोज, ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस हमारे पास होगा और उसको एनी हाउ कोई ना कोई एनर्जी देकर, या तो उसको हीट देकर, लाइट देकर, या इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में उसका नाम होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.5। इसमें क्या करना है, हम लोग एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, हार्ड ग्लास का ट्यूब बड़ा सा, और इसमें हम लोग ले लेंगे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 7H2O। ये पढ़ेंगे हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ये वाटर, और इसी वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन। पहले ही देख लो, जब यहाँ टेस्ट ट्यूब में डालोगे उसी समय देख लो इसका कलर लाइट ग्रीन, हल्का गौर करोगे तो ग्रीन लगेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। अब क्या करना है, इसको धीरे धीरे यहाँ पर एक स्प्रिट लैंप के सहारे या गैस बर्नर के सहारे हीटिंग करो, हीटिंग। जैसे ही गर्म करोगे थोड़ी देर में व्हाट यू विल सी, हीटिंग जब करोगे तो तुम देखोगे कि इसका ग्रीन कलर खत्म हो गया, द सॉल्ट बिकम्स व्हाइट, सॉल्ट एकदम कॉमन सॉल्ट की तरह व्हाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में गर्म करते करते ये वाटर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप कर जाते हैं वेपर बन के, देन इट बिकम्स फेरस सल्फेट। फर्दर जब थोड़ी देर और गर्म करोगे तो देखोगे इससे और कुछ गैस निकल रहा है जो सफोकेटिंग नेचर का है, जिसको हम वी कैन नॉट टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सफोकेटिंग लगेगा सूंघने में, और बर्निंग सल्फर, ऐसा लगेगा जैसे कोई सल्फर जल रहा हो, यानी SO2 गैस बनेगा।
तो हीटिंग जब होती है तो फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन होता है फर्दर हीटिंग से, तो बनता है ट्वाइस Fe2O3। ये हुआ फेरिक ऑक्साइड सॉलिड के रूप में बनेगा, इसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का सॉलिड, वो यहीं पर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। देन SO2 गैस और SO3 गैस, दो तरह की गैसें निकलती हैं, SO2 और SO3। SO2 का जो स्मेल होता है वो बर्निंग सल्फर की तरह होता है। ब्राउन कलर का रेसिड्यू यहाँ बच जाएगा। तुम देख रहे थे ग्रीन कलर का था, फिर धीरे से व्हाइट हुआ और व्हाइट के बाद Fe2O3 ब्राउन कलर हुआ और बर्निंग सल्फर की तरह का गैस निकला। और रिएक्शन ये है, अभी आराम से देख सकते हो, एक सिंगल मेरे पास सब्सटेंस था फेरस सल्फेट नाम का, एंड इट हैज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है, जो कि इंडस्ट्रियल लाइफ में या डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके सीमेंट बनाने में। इसको लाइम स्टोन कहते हैं, कॉमन नेम इसका लाइम स्टोन है। ऐसे केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। लाइम स्टोन बोला जाता है डे टू डे लाइफ में। एंड व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है हीटेड, दिस बिकम्स कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। And this CaO is used in the manufacture of cement. Mainly, खास करके मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में ये यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने में इसका मुख्य रूप से यूज होता है। अब अगेन देखोगे तो एक सिंगल सब्सटेंस मेरे पास था कैल्शियम कार्बोनेट नाम का, हीटिंग करने से डिकम्पोज हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया दो सब्सटेंसेस में, दोनों सिंपलर है। इससे अगर एटम वगैरह गिनोगे, इसका फॉर्मूला में 3 टाइप के एलिमेंट 1 2 3 आइटम है, 1 2 3 5, यहाँ पर है 2 ही आइटम है, यहाँ 3 आइटम, 2 ही एलिमेंट, यानी सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, 2 का हुआ है, और इसलिए इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम डिफाइन करना चाहें डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट अस सी द रिएक्शंस इन व्हिच, इसका डेफिनेशन होगा द रिएक्शंस in which a substance means it should be a compound रहेगा तभी broken down होगा, नहीं तो नहीं होगा। A substance decomposes or breaks down to give 2 or more simpler substances, 2 या ज्यादा, 2 or more simpler substances are called decomposition reaction are called decomposition reaction। एग्जाम्पल्स तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। एग्जाम्पल तो वही चर्चा कर चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की हीटिंग वाला और फेरस सल्फेट की हीटिंग वाला। तो तुम देख सकते हो कि ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन हो गया। द रिएक्शंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन, टूटता है और 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस बन जाता है। जैसा कि देखा फेरस सल्फेट के ब्रेक डाउन होने से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, और लाइमस्टोन के ब्रेक डाउन होने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 सिंपलर सब्सटेंस बना। एक और एक्टिविटी के जरिए इसको हम लोग देख सकते हैं सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है। और एक बात और बताना है यहाँ कि हमने हमारे डिकम्पोज करने के लिए, सब्सटेंस को डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोगों ने हीट एनर्जी को यूज किया। एंड व्हेन हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए अगर हम लोग हीट एनर्जी यूज करते हैं तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल हीट, थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की चर्चा की वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, एक्टिविटी 1.6 के नाम से है। एक्टिविटी 1.6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन बॉइलिंग ट्यूब लेना है, बॉइलिंग ट्यूब, और इसमें हम लोग ले लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग ले लेंगे लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट और इसका फॉर्मूला होगा लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल्ड लेड नाइट्रेट। और इसको जब हम लोग हीट करेंगे, आइदर स्प्रिट लैंप के सहारे, जब इसकी हीटिंग होगी, हीटिंग जब होगी इसकी, तो तुम देखोगे कि ब्राउन फ्यूम यहां से निकलेगा ब्राउन फ्यूम्स, और वो ब्राउन फ्यूम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। और इसके अंदर रेडिश येलो जैसा कोई प्रिसिपिटेट बचेगा, एक केमिकल बचेगा। लेड नाइट्रेट कलरलेस या व्हाइट कह सकते हो, कलरलेस या व्हाइट कह सकते हो इसको, व्हाइट लेड नाइट्रेट। इससे ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा और यहां पर एक रेसिड्यू बचेगा येलोइश रेड का, वो लेड ऑक्साइड होगा। तो रिएक्शन होगा इस प्रकार से, PbNO3 होल्ड टू ट्वाइस PbO लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस 4NO2 गैस और O2 गैस। तो इस प्रकार से देखा कि सिंगल सब्सटेंस है, अकेला लेड नाइट्रेट नाम का एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है। हीट होने से, गर्म करने से ये 3 सब्सटेंसेस में, जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गए, यानी टूट गया। सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हीटिंग की वजह से बना है, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल हुआ। ठीक है, और भी डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस हैं। एक उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं 1.7, वन एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7 हम लोग करते हैं। एक्टिविटी 1.7 करते हैं, एक्टिविटी 1.7 करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 करते हैं। क्या करना है इसके लिए, हम लोग एक प्लास्टिक का मग लेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, प्लास्टिक मग। इसमें क्या करेंगे, वी शैल ड्रिल 2 होल्स, 2 जगह होल बना देंगे, होल। इस होल में क्या करेंगे, रबर का कॉर्क फिट कर देंगे, रबर का कॉर्क फिट कर देंगे, रबर का कॉर्क फिट करने के बाद इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोड मतलब ग्रेफाइट, कार्बन का इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे इस रबर को, सेट कर देंगे। कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये, कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये, इलेक्ट्रोड। उसके बाद इसमें वायर के हेल्प से 6 वोल्ट का एक बैटरी इसमें लगा देंगे, 6 वोल्ट की एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। एक स्विच भी रख देंगे यहाँ पर, स्विच ऑफ ऑन करने के लिए स्विच लगा देंगे। देन क्या करेंगे हम लोग, और टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के इस, पहले तो पूरा बीकर इस तरह से पानी से भर देंगे, सो दैट द कार्बन रॉड्स आर इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डूबा हुआ हो। कम से कम आधा बीकर से ज़्यादा पानी ले लेंगे, और फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब में पानी भर कर इस कार्बन रॉड के ऊपर इन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे, इसमें भी दोनों तरफ। ठीक है, देन व्हाट डू वी डू, क्या करेंगे इसके बाद, स्विच ऑन करके करंट पास कर देंगे। करंट पास करोगे जैसे ही, एज सून एज यू पास द करंट, व्हाट यू सी, द बबल्स ऑफ गैसेस विल स्टार्ट कलेक्टिंग ओवर द टेस्ट ट्यूब्स बाय डिस्प्लेसिंग द वाटर। ऊपर से टेस्ट ट्यूब का पानी धीरे धीरे डिस्प्लेस होकर नीचे की ओर जाएगा और तुम देखोगे यहाँ पर गैस हो रहा है। इसमें से बैटरी में जिधर प्लस जोड़ोगे उसको कहते हैं एनोड, अब माइनस से जिधर जुटा हुआ होगा, माइनस वाला छोड़ डालेगा कैथोड, एनोड और कैथोड।
ठीक है, एनोड और कैथोड। तो देखोगे क्या, दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा विद द बबल्स, क्योंकि वाटर भरा हुआ है इसमें, बबल्स के रूप में गैस कलेक्ट होगा और वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, धीरे धीरे गैस कलेक्ट हो जाएगा। जब ये टेस्ट ट्यूब गैस से भर जाए तो केयरफुली इसको बाहर निकाल कर इसमें गैस एक कवर लगा देंगे और उसको ढक देंगे किसी तरह से गैस। उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा गैस है। तो तुम देखोगे जो कैथोड में है इसमें 2 गुना गैस, अगर इसमें 1 गुना गैस जमा हुआ है तो इसमें 2 गुना गैस जमा हुआ है। कैथोड में जो गैस जमा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है और एनोड में जो हुआ है वो ऑक्सीजन गैस है। और उसका टेस्टिंग कैसे होगी कि ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब वाले में लाओगे अगर बर्निंग स्टिक तो वो तेजी से जलने लगेगा, इंडिकेटिंग भी ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में। और हाइड्रोजन वाले के पास जब बर्निंग स्टिक लाओगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो इसे पता चलेगा ये गैस अगर बर्न्स विथ हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड, पीओपी पॉप, पॉप साउंड के साथ अगर जलेगा तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस। तो हुआ क्या, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जब वो इसमें लिया था मुख्य रूप से वाटर, हालांकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉम H2SO4 भी डाले थे, इसमें वाटर भी था, वाटर था एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 H2SO4। तो वाटर मुख्य रूप से लिया था। सो वाटर हैज बीन decomposed into hydrogen gas and oxygen gas. So देखो वाटर इज ए लिक्विड और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एक सिंगल सब्सटेंस has broken down into 2 singular substances. So this is yet another example of decomposition reaction but with the help of electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी के हेल्प से हुआ, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी हम लोग करते हैं, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक चाइना डिश में, एक चाइना डिश, वी शैल टेक ए चाइना डिश, इसमें सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे, व्हाइट कलर होता है इसका, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इस पर सनलाइट पड़ने देंगे, सनलाइट, सनलाइट। तो जब इस पर सनलाइट पड़ेगा थोड़ी देर तक तो इसका कलर व्हाइट से चेंज होकर ग्रे हो जाएगा, ग्रे। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, AgCl व्हाइट कलर का था, व्हाइट। जब इस पर सनलाइट पड़ा, सनलाइट, देन क्यों कलर ग्रे हुआ, तो दिस हैज डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस तो एस्केप कर जाएगा, बहुत हल्का येलोइश ग्रीन होगा, हल्का सा, वो तो पता नहीं चलेगा, और इसका कलर होता है ग्रे, ग्रे, ग्रे। तो ग्रे कलर का में कन्वर्ट होने का मतलब है AgCl से, AgCl डिकम्पोज होकर, ब्रेक डाउन होकर Ag और Cl2 बना है। और दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैज बीन ब्राउट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से हुआ। सिमिलरली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं, और वहाँ पर भी जब लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, लाइट, जब लाइट एनर्जी पड़ता है तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और सनलाइट एनर्जी। तो ऑल द 3 टाइप्स, 3 तरह के हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखे देखे हमने, कि जिसमें हीट एनर्जी यूज हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, और फिर सनलाइट यूज हुआ। तो किसी भी प्रकार की एनर्जी जिसमें यूज होता हो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने शुरू में ही लिखा था कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, मोस्टली एक्सोथर्मिक होता था, उससे हीट निकलता था। अभी मोस्टली हमको देख रहे हैं, मोस्टली क्या, ऑल केसेस जितना भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए हैं सब में किसी न किसी प्रकार का एनर्जी रिक्वायर्ड है। वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस which require energy, which require energy, जिसको एनर्जी चाहिए, किसी न किसी रूप में एनर्जी चाहिए, एनर्जी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन,
फॉर ब्रिंगिंग आउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर करवाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थे सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक उल्टा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट भी बनता था और एनर्जी रिलीज होती थी अपने आप में, रिएक्शन होते होते रिलीज होती थी। अभी क्या है, रिएक्शन होगा ही नहीं, पहले तुमको एनर्जी देना पड़ेगा कहीं से एनर्जी का व्यवस्था करो, इंतजाम करो, हीट एनर्जी दो बर्नर जलाकर, लाइट एनर्जी दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दो बैटरी का इंतजाम करके, कहीं ना कहीं से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बुक्स में हाँ जो एक्सरसाइज इससे रिलेटेड दिए हुए हैं उसको जो है सॉल्व करके आना है। ठीक है, ओके।